All right, this is another fiery fallout of the celebrity Twitter storm. Remember at that point of time when a lot of international celebrities, some Indian celebrities were tweeting for the farm agitation, and then there was this storm of Indian celebrities that tweeted in favor of the government. Now, film stars are in the political crossfire. As Maharashtra Congress chief today, Nana Patole, questioned silence of certain film stars on the rising fuel prices, saying that he tweeted out when the Manmohan government was in power against fuel prices, why not now? And if you don't do it now, and he named two film stars, Amitabh Bachchan and Akshay Kumar, if you don't tweet against the rising fuel prices, we won't let you work in Maharashtra. Here's the full report. न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे. A chilling threat from the Maharashtra Congress chief, putting superstars Amitabh Bachchan and Akshay Kumar on notice, arm twisting them to tweet over rising fuel prices, warning them that failure to comply will result in a ban on them being allowed to shoot their movies and screenings. आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर हिंदुस्तान की जनता के जेब काटने का महापाप भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे. ये भूमिका कांग्रेस लेंगी. While Nana Patole justifies his bizarre remark, citing the star's past tweets on fuel price under the UPA government, the Aghadi government in Maharashtra appears split. नहीं, ऐसे तो कोई धमकी का कारण नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई धमकी किसी ने दी है. लेकिन जो आप कह रहे हैं उसको फिर से एक बार जांच किया जाएगा कि क्या कहा है उन्होंने, और उसके ऊपर बाद में फिर सकर करके हम उसमें वक्तव्य करेंगे. The opposition BJP has attacked the ruling combine for allegedly muzzling freedom of speech and trying to score political points using film stars. नाना पटोले जी का एक पब्लिसिटी स्टंट है. उनको ये पता है कि अमिताभ जी या अक्षय कुमार या सेलिब्रिटीज के ऊपर बोला तो दिन भर खबर चलती है, नए नए अध्यक्ष बने, उनको भी अपना नाम कमाना है. आप सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष होंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आप मालिक हो गए. मालिक को जैसे अधिकार थोड़ी मिले. The Maha Aghadi government had recently faced a backlash after its move to probe Bharat Ratnas Lata Mangeshkar and Sachin Tendulkar for their tweets for India during the Rihanna Greta toolkit controversy. Are stars now soft targets and merely caught in the crossfire between the BJP and the Congress? Usually it's the Shiv Sena that has the notoriety of threatening Bollywood and Bollywood artists. But this time for a change, it's the Congress which is the partner of Shiv Sena in the MVA government that has threatened Amitabh Bachchan and Akshay Kumar. And perhaps that is why the Chief Minister and his party men are embarrassed, and that is why they have shied away from commenting on the issue. With camera person Samir Shanbag, Kamlesh Sutar in Mumbai for India Today. All right, so my colleague has been able to catch Nana Patole. He's joining us right now from the Nagpur airport, just about to take a flight back to Mumbai. पाटोले जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, पर एक चीज से बताइए, आपने क्या बोल दिया सर? किसी को डंडा पकड़ के आप थोड़ा ना बोल सकते हैं कि आप ये ट्वीट करिए ना करिए, और अगर आप नहीं ट्वीट करेंगे फ्यूल प्राइस के अगेंस्ट तो हम आपका काम नहीं करने देंगे. आपने अमिताभ बच्चन जी, अक्षय कुमार जी को तो ओपन थ्रेट किया है. देखो, एक सिंपल बात है, मैं मुंबई में ही नहीं तो देश में भी काम करने की उनकी ये नहीं होना चाहिए. वो हमारे देश के आइकॉन है और आइकॉन के हिसाब से रहना चाहिए. एकदम क्लियर बात है. क्या मनमोहन सिंह साहब के सरकार में क्या डेमोक्रेसी थी? इसलिए उस समय में इन लोगों ने ट्वीट किया था जब इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल के जो दाम थे वो हाई थे, तो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने आम लोगों को पेट्रोल और डीजल कम दाम में मिले इसकी कोशिश की. लेकिन अमिताभ जी और अक्षय कुमार जी ने उस समय में ट्वीट किया, और ट्वीट कर उन्हें ऐसा ट्वीट किया अमिताभ जी ने कि
गाड़ी तो ले सकेंगे लेकिन पेट्रोल भरने के लिए लोन लेना पड़ेगा, इसलिए 100-200 का पेट्रोल डालो, 2-4 रुपये का पेट्रोल डालो और गाड़ी पर डालकर जला दो। क्या इस तरह का ट्वीट उस समय किया था? तो आज इंटरनेशनल बाज़ार में तेल के कच्चे दाम क्या के भाव क्या है वो भी थोड़ा पता करना चाहिए। और देश में जो आज स्थिति महंगाई की वजह से पैदा हुई, आम लोगों का जीना दुभर हो गया, क्या ऐसे समय में वो ट्वीट नहीं कर सकते? ये दोगली नीति जो है ये सेलिब्रिटी की नहीं होना चाहिए। और क्योंकि सेलिब्रिटी कांग्रेस ने भी रेखा जी हो, लता जी हो, सचिन तेंदुलकर हो, इन लोगों को भी राज्यसभा में भेजा, लेकिन कांग्रेस ने इन लोगों से हमारी गलतियां हुई उसको इस तरह का ट्वीट करने के लिए नहीं कहा गया। कांग्रेस हमेशा इस पक्ष में है कि ये हम डेमोक्रेसी को मानने वाले हैं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी की सरकार में जो स्थिति पैदा हो चुकी है उसका परिणाम हम लोग हमारे ये जो सेलिब्रिटी है इसके ऊपर भी हम देख रहे हैं। और ऐसे समय में हमारा सवाल इनको ऐसा है कि तुम्हारा पिक्चर फुकट नहीं देखते, या तुम किसी से पिक्चर बनवाते हो तो तुम कोई फुकट नहीं बनवाते, और ऐसे समय में तुम्हारी ये दोगली नीति जो है वो दोगली नीति नहीं चलेंगी। और इसलिए महाराष्ट्र में अमिताभ जी का हो या अक्षय कुमार का हो, ये दोनों लोगों का ना शूटिंग होने देंगे, काले झंडे दिखाएंगे उनको, और उनका पिक्चर भी है उसके सामने हम काले झंडे दिखाएंगे। जहाँ भी ये रहेंगे हमारे युवक कांग्रेस और एनयूसी वाले वहाँ काले झंडे दिखाने का काम करेंगे। गांधी जी के प्रिंसिपल से चलने वाले हम लोग हैं, इसलिए मारदोड़ का इशू नहीं है, लेकिन हम डेमोक्रेसी सिस्टम से इस आंदोलन को और सच्चाई और इनका जो चेहरा ढका हुआ चेहरा लोगों के सामने लाने की कोशिश हम लोग करेंगे। पर पटोले साहब, आप जो कह रहे हैं, चलिए मान लिया सेलिब्रिटी है, आइकॉन है, पर उनका भी बुद्धि है, उनका भी दिमाग है, उनको जो ट्वीट करना था उन्होंने तब किया, इस बार उनको नहीं करना है। आप कैसे बोल सकते हैं कि आप करो? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी तो कुछ होता है ना पटोले साहब। यहाँ पर आपके राहुल गांधी कह रहे हैं ना बार बार कि जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने सपोर्ट किया फार्मर्स मूवमेंट को, ट्वीट किया, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब आप वही उल्टा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उनको आप शूट नहीं करने देंगे, काले झंडे दिखाएंगे। वो तो उनकी मर्जी है, जब वो करना चाहे करेंगे, नहीं करना चाहे नहीं करेंगे। हमारी एकदम क्लियर बात है कि जो ये ढके हुए चेहरे जो है इनके चेहरे खुले करना भी ये हम लोगों का दायित्व जाता है। वास्तविकता समाज के सामने आए ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं। हमारा कोई बीजेपी ने क्या करे, बीजेपी तो देश बेचने निकाले, कांग्रेस ने तो देश को खड़ा किया, जहां सुई भी नहीं बनती थी सुई से लेकर रैकेट तक बनाया, जो आज मोदी जी और बीजेपी वाले उस प्रॉपर्टी को बेच कर देश चला रहे हैं। पाटोले साहब सही कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश को खड़ा किया है तो अभी तक तो आप बीजेपी में थे ना थोड़े टाइम पहले तक, पर वो बात अलग है सर। पर मैं उसी बात पे आऊंगी, उसी मुद्दे पे आऊंगी सर। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इसमें क्या रह गया? उनको जब मनमोहन जी की सरकार थी उनको करना था, उन्होंने किया, अब उनको नहीं करना है। अब कोई डंडा लेके किसी को थोड़ा ना बोल सकता है कि करो, नहीं तो हम शूट नहीं करने देंगे। जहां ये लोगों पे जाएंगे वहां हमारे लोग काले झंडे दिखाएंगे, उनका विरोध करेंगे, वो हमारा अधिकार है। जैसे उनको ट्वीट करने का अधिकार है, वैसा हमारा भी उनका निषेध करने का हमारा अधिकार है, हम लोग करेंगे। चलिए सर, पीसफुल प्रोटेस्ट सबका अधिकार है, आप करिए। अप्रिशिएट यू ज्वाइनिंग अस मिस्टर पटोले। पटोले साहब, हैव अ सेफ फ्लाइट ऑल्सो। आप हमारे लिए रुके रहे वो 5 मिनट, बहुत शुक्रिया। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.